Hello everyone. So today in Synapse Academy we are going to discuss OPSC 2023 mains sociology option. So आपण मानक जाना अछि that recently mains रो exam conduct हेथिला and it is the first time जे UPSC pattern अनुसार OPSC रो exam हेथिला and before this exam हमको जाना नथिला what is the exam pattern, right? So it is the first time that now whoever will be appearing the exam, we have a clear set of idea that what is the exam pattern and what set of questions would be asked, right? So before we begin the analysis of sociology optional paper 1 for this year, a few things that has to be kept in mind is that first, जदि आमे paper देखिबा, what I was discussing with Ashok sir as well, that this time the optional papers were on a very broader concept, right? ଯେମିତି ଦେଖିବା questions ଗୁଡା family ଉପରେ, marriage ଉପରେ, gender ଉପରେ ପଚାରିଛି ହେଲା and ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ repeated topics, right? ଯେମିତି paper 1 ରେ ଦେଖିବା ତ lot of topics were repeated. For example, family, marriage ଏଟାର ତିନିଟା क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ତାପରେ जेंडर ଉପରେ and women ଉପରେ ତିନିଟା क्वेश्चन ଆସିଥିଲା तो what OPSC now wants to check is how you can have a broader number of points with you ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ narrow topic को broader way ରେ ଦେଖି परिबा because या अगर एग्जाम रो पैटर्न थिला 60 मार्कर क्वेश्चन, राइट? 20 marker question. So that time it was not possible to check your in-depth knowledge. But now because of the change in pattern, in-depth knowledge टा check करिबा possible ही जाइछ. So आमे देखिबा that for the upcoming year, obviously the preparation of optional should be done beforehand. As an aspirant myself, and which I have done my entire thing with Synapse itself. Okay, and obviously as a teacher, so I believe that optional preparation needs to be done before prelims. The biggest mistake which everyone does is preparing within that time period of prelims and mains. Say time period of jama hi paribani, either you will learn new things, you will revise, you will write answers. Say time period is only for revision purpose and only for writing answers because jette revision hebo sette ki hi exam re lekhi pariba. Revision na hele exam re mane padiba bahut difficult hela. So before going into the analysis of this year's sociology paper, let's see what kind of pattern has OPSC shifted to, right? So everyone who appeared this year, including myself, right? So we were not at all aware what kind of pattern it is going to be. It was like all surprise for all of us. But for you people who will be appearing next year, it is very much clear, okay? So let me just in brief tell you what kind of pattern do we see today, okay? If we look into the new pattern, okay, in the new pattern there is two set of group, okay, there is group A and there is group B. Okay, in the group A we have 10 questions that has to be attempted out of 12 number of questions, okay? So जेमती 12 total question थिबो ताठारो 10 we have to attempt हैला and it will carry 15 mark. Okay, so total हैला 150 marks. Similarly जदि आमे group B देखिबा, group B रे 5टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवार अछि एंड ताथारे 6टा क्वेश्चन थिबो हैला and it will carry 20 marks, so हैला 100 marks, so total it comes to 250. Now this is okay, this is something that is a very basic thing. Now the thing is that what kind of strategy should you have, right? जेमती एग्जाम रे गला परे हमें जानिबानी जे केमती क्वेश्चन आसी थांता, केमती हमें अटेम्प्ट करि थांतो हैला. So this is a general strategy which I followed and this I think works. But strategy again varies from person to person, okay? But this is a very general strategy, okay? So because as I have told you, 15 mark रो आमे जदि देखिबा हैला क्वेश्चंस गुडा थाए तापरे 10 mark रो क्वेश्चन गुडा थाए तो 15 mark रो जो क्वेश्चन गुडा थाए आमे ताकू देई परिबा that आमे ताकू 15 minutes देई परिबा हैला सेटा 5टा थाए तो हमको 75 minutes लागिबो टोटल हैला तापर 10 मार्कर जो क्वेश्चन था सेटा 10टा so you can give 10 minutes, okay? 105 minutes. If you add, still there is 5 more minutes left, okay? So kahi ki mo 5 minutes chhadi chi because say 5 minutes maybe you can one thing is that the examiner will come, that person will make you sign some kind of documents and everything, but rest you can use this 5 minutes to mark the keywords on your question paper. Yes, you heard it right.
This has really helped many toppers. We have discussed with toppers and we have seen the toppers their own question booklet. So what they do in sociology option is that whenever they get the question paper, they try to write some keyword besides the question itself. If you get time of that 5 minutes, you can utilize it, and it will be really helpful because that will help you write your answers in a very fast pace. Okay. So, but some people also give 11 minutes. Okay, to write this, so you can decide as per your convenience. But this is a better way that for 5 minutes you can keep it for writing the keywords of the answers, and rest 15 minutes for the 15 minutes should be given for the 20 marker question. Okay, and rest 15 mark question could be given 10 minutes to write. Okay, so similarly you can manage your time. Okay, now let's see the question. Okay, so I am starting with the discussion of group A. Group A discussion ami kariba 15 marker question, 10 question attempt karibar thila, but we will discuss all the 12 questions. Okay, so in the first video we will be discussing 6 questions, and later on we will be discussing more 6 questions. Okay, so the first and foremost thing which I could catch a pattern is that most of the questions were asked from UPSC previous year. Yes, you heard me right. In fact, Ashok sir kete thara kahichanti that before going into this exam that you practice UPSC previous year question paper, and it was clearly reflected, and those who prepared would have been at immense benefit. Okay, so next year pai bhi eta haba that you have to look into and practice the questions from UPSC previous year. So the first question ja mein dekhiba, so it is, in what sense sociology is a science? Explain. So see, this part of the question requires not only your answer that yes, sociology is a science, but also the other part, right? That yes, sociology, despite being a science, okay, it has certain limitations. Okay, so I have written a broad layout of the question to be answered. Okay, so if you look into this question, introduction could be answered in terms of the founding fathers. You could mention that sociology as a science was told by the founding fathers like August Comte, Herbert Spencer. Okay, and tapare ame yara study gora bhi likhi paiba jemti August Comte ro social statics and social dynamics thila and positivism thila. Herbert Spencer ro organismic analogy thila. You can write Emile Durkheim ro social fact thila. So you can describe that how sociology as a science was given by the founding fathers like August Comte, Herbert Spencer, etc. And then you have to define, that they wanted to study sociology as a science because they wanted to apply the same methods that we use in natural sciences. Natural sciences se jahan method guda apply hothila, in the physics, chemistry, biology, they wanted the same methods to be followed in sociology as well. That is how introduction should be. Okay, the introduction should be something that should be broadly based. Okay, it should define the entire gist. Tapare ame body ko dekhiba. Body re obviously it will be two part. One part, your main focus should be on sociology as a science. Okay, so here we will write about certain paradigms, right? Like if you see, we will write about universality, that yes, sociology the concept gura universal. Objectivity will write empiricism. Okay, we'll write predictivity and reliability. Okay, so see, this is something that each one of us could write, but what will give you more marks is by supplementing all of these points with the thinkers. Jemti universality mein ame likhi pariba that religion, family, ये सब यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है तो रिलीजन विषय मैक्स वेबर भी पढ़ी, डर्कहाइम भी पढ़ी, कार्ल मार्क्स भी पढ़ी है. Objectivity, you could just define objectivity and give an example that Weber nije कही that we can use Wörthstehen method to study sociology objectively. Empiricism define करी पारे जे केमती field study रू आमे empirical study करी पारिबा, and you can give the example of M.N. Srinivasan study, A.R. Desai. See, there is no hard and fast rule that you can't use the example of Indian sociology in paper 1. Okay, we have searched through a lot of thinkers from UPSC, OPSC, and we have seen that there is cross mingling of thinkers. Okay, so you can use that. Okay, you can even write about when you write the second part of the question where you are answering that no, sociology cannot always be considered as a science. So you can mention these points like men and versus meta debate, that
men is not matter, right? So you can give the example. Jamti, there is William Dilthey. Okay, so they say that human beings are not matter. They are composed of human relationships. You can talk about the subjective biasness involved. You can give the example of Oscar Lewis study, where Oscar Lewis, okay, he went to study in a village in Mexico, and he studied from a conflict perspective. The same village was studied by Redcliffe Brown, okay, who studied it from a functionalist perspective. So you can say that there is always a subjectivity bias involved in sociology. Okay, you can even give the example of other non-positivist thinkers here who always say that sociology is not a science, it is more than that. You can give the example of Adorno. Okay, so Adorno says that sociology as a science is suffocating and it kills people. Okay, it kills innovation. You can write about Gunnar Myrdal, very important. Don't make sure कि आमे इटी spelling mistake करिबानी, because we have seen a lot of paper that spelling mistake थाएगा हैला. तो Gunnar Myrdal, तो even कुहंती jet objectivity isn't desirable हैला. You can give a lot of other example जेमती Habermas हैला. Habermas coach होती that जदि human को पढ़िबे तो निहाती there will be some kind of values involved. So you can give some more examples, some more thinkers when you write the other part of the question. Okay, so empty likhile kon hebo that the entire question will become very very comprehensive. Then conclusion to likhi pariba that there is a need that we should have a blend of both the methods. Okay, we can use qualitative method, quantitative method. Okay, you can cite that no one approach is perfect. We need to have a balance between sociology as a science and sociology as an arts. Okay, and you can give the example of Max Weber's Wurtzian approach. Okay, you can just cite that example and you can conclude. Okay, so any answer jahan bhi hame answer likho chu, introduction, body and conclusion should be very very clear to the examiner. Tapare hochi that the demand of the question is very much needed. Okay, if you don't understand, see, the question is simply asking in what sense sociology is a science. तो जने पीड़ा लिखी पारिबो sociology is a science and conclude करी पारिबो, because there is n number of points. Okay, you can write a label, validity, you can write predictability, etc. But you have to answer the question holistically. तापरे ही भल मार्क्स आसी हैला. Okay, आमे देखिबा next question. Next होची elaborate the view of Durkheim on the elementary forms of religious science. Very important. I was searching to UPSC 2015 that 2015 what I have seen is 2015 2020 बहुत अधिका questions UPSC पचारची and even 2017 also हैला. माने OPSC टिक के questions गुड़ा देखी देची, but everything is not copy pasted, but mostly you see the question 2 and 1 as it is you will find in UPSC previous year. Okay, so if you look into this question, okay, now this is a very easy question, right? But you know that Durkheim's elementary forms of religious like पिला माने बुझी पारु नाहंती हैला. तो सोशियोलॉजी पढ़िबार गोटे जिंस होची जे हमकु थिंकर्स बहुत भलरे पढ़िबाकू पड़िबो. इनफैक्ट आई थिंक दैट द थिंकर्स रो पोर्शन हैला, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, एगुडा दीज आर द कोर बेसिक. ओके, जेमति पिलर मुकु है, सो सेगुडा एगुडा होची पिलर. तो एगुडा भलो हेले व्हाट विल हैपन इज यू कैन इनकलकेट देयर example everywhere else. Okay, so यार introduction रे कोन लिखि परिबा हैला. So जेमति Durkheim होचंती गोटे कोन functionalist हैला, तो एटा मेंशन करबा निहाती दरकार. This will give the examiner a view that you are very much clear with your concept हैला. तो Durkheim होचंती गोटे functionalist. और Durkheim निजोर बही जोटा होची elementary forms of religious life एटा एटा ही बाहर करथिले 1912 रे, जदी मने रही गला. ठीक सी सम ऑफ द इयर्स यू कैन रिमेंबर हैला, आ किछ उपाय नै मने रखिबा को पड़िबो हैला. एंड यू कैन मेंशन द मेथड जोटा से यूज करथिले एटा को पढ़िबा पईका. जेमती इफ यू स्टडी तो से माने से एथनोग्राफिकल मेथड्स यूज करथिले हैला. एंड गोटे ट्राइब थिला ता ऊपर ही से रिलीजन विषय रे पढ़ैथिले, सेटा होची अरुंडा ट्राइब हैला. तो ए गोटा लिखि देले introduction रे examiner will give you +1 हैला, because you just simply putting forward your entire clear view about Durkheim. ठीक है, ठीक अच्छे. So that is what introduction always makes some difference. Okay, it will definitely give you some extra marks. जदि body को आसीबा,
सो बॉडी रे आमे देखिबा डेफिनेशन ऑफ रिलीजन वेरी इंपोर्टेंट हैला जदी इफ यू डोंट राइट दिस समवेयर आई थिंक द एग्जामिनर विल फील यू डोंट नो ओके सो जोटा होची डरखाइम रो डेफिनेशन ऑफ रिलीजन सो डरखाइम कहउछंती दैट you know religion is a unified system of belief and practices okay जोटा की sacred thing को profane thing थारु अलगा रखे हैला so this is the definition then you define the definition okay it means that you have to explain this definition the next point रे लेखि पारिबा that religion रे दुटा basic component थाए belief और rights हैला तापर याको explain करिबा then जदी आपण माने पढी थिबे so you will know that Durkheim talked about the origin of religion, right? He was talking about religion from a simpler society perspective, okay? तो हमें लेखिबा केमती से origin of religion विषय totemism विषय कहि छंती totemism कहिला परे से कहि छंती collective effervescence विषय हैला तो basically Durkheim simply says that he while doing his study among the Arunta tribe हैला से कहिले जे देखिबा को पड़ला जे लोक माने जेबे गैदरिंग करथिले तो दे यूज्ड टू फील सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट टुगेदर हैला एंड दिस एक्साइटमेंट देन दिस डरखाइम कॉल्स एज कलेक्टिव एफरवेसेंस ओके हैला सो से कहथिले जे व्हेन पीपल यूज्ड टू कम टुगेदर दे विल फील दिस काइंड ऑफ एक्साल्टेशन एंड एक्साइटमेंट हैला एंड व्हेनेवर दे मूव्ड अपार्ट सेटा तसमन को फील होनथिला तो याकू से माने गोटे नेम देबा को चाहुथिले तो से माने ताकू नेम देले टोटेमिज्म ओके टोटेमिज्म होची गोटे सिंबल इट कैन बी इन एनिमल फॉर्म रे जेंती गोटे गोटे रिलीजन रो था एनिमल फॉर्म रे प्लांट फॉर्म रे जहा की से माने इंडिकेट करि परिबे दैट यस वी आर फीलिंग दैट एक्साइटमेंट हैला तो से कहिले दैट रिलीजन रो ओरिजिन होची टोटेमिज्म रो हैला एंड तापरे से कहिले दैट हियर आल्सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन हैला sacred is something that is set apart for example you know while performing certain homes rituals sacrifices okay and profane hochi jaha you know jaha forbidden for example ame gadhe ki mandir jiba hela no gadhe ki jai paribani seta hochi profane activity hela profane activity re even you can add you know like jaharo death he jaye birth और death word को jaha you know पालन हुए सेगुरा होची प्रोफेन एक्टिविटी हैला एंड सेक्रेड होची जाटा के सेरेमनी हैला राइट्स हैला रिचुअल्स हैला तापरे वन मोर इंपोर्टेंट थिंग व्हिच डरखाइम सेज इज दैट you know that religion as an integrating force okay he says that religion is something that is functional जेटा आमे इंट्रोडक्शन में लिखिथिलु that Durkheim is a functionalist हैला so he will tell that religion is functional okay religion is integrating in nature से कहिथिले that religion सोसाइटी को बाइंड करके रखिबो it will act as a medium of social control तापरे से इटा भी कहिथिले that religion you know will have an answer to all the predicaments of men okay all the supernatural things okay so in this way you can elaborately discuss about the Durkheim's idea on elementary forms of religious life okay but this is not where the answer will end okay you have to conclude by the answer by writing one line of criticism okay you can just simply say that his idea of religion as being functional is only applicable to simpler societies in complex societies religion has also played dysfunctional role like fundamentalism okay communalism etc but don't conclude negatively okay at the end lekhi paribo that Emile Durkheim who is known as the grandfather of sociology okay and his contribution by studying the religious life has enriched the subject matter of sociology है ना एंटी लेकिले कौन है that you will not end negatively and you will be giving a good conclusion okay I hope so बुझी होची है ना especially एटा बुझी हबो जो माने preparation करी सारी छंती sociology टिके पढ़ी छंती है ना for a beginner हे पारे टिके speed हे जाइथिबो because I am just analyzing the previous year जदी मु पढ़े भी तो it will take two because it's a thinker right it will take a lot of time but hele I just wanted we just wanted you to give an idea that केमती पढ़ा हुआ okay so next होची हमें देखिबा very important okay so this is hypothesis okay and research design okay so something that I would like to mention here is that
एटा जो पोर्शन होची हैला हाइपोथेसिस हैला रिसर्च डिजाइन हैला तापरे आमे देखिबा यू नो ऑल दिस सैंपलिंग तापरे जोटा भी यू नो क्वेश्चन आयर इंटरव्यू ए सब गुडा ना पिला माने भलो से पढंतीनी कारण होची कि एटा तो गोटे कांसेप्ट भी दरकार और तापरे याको लेखिबार गोटे आर्ट होची बिकॉज़ this portion you need to set a lot of examples hela if you want to get score in the sociology as a science unit and like interview questionnaire hypothesis sampling hela only you give good examples ठीक है and good sociological studies hela तो पिला माने एटा पढंतीनी but you see OPSC this time framed a lot of question from these units hela and luckily mu to पढतिली hela but because obviously I have done my masters also so that is there but again याको fear करिवार नाही हला बहुत easy जदी बुझी हला it is the most easiest section okay here also we have certain thinkers okay so firstly जदी देखिबा hypothesis हला so hypothesis is something that is mostly considered to be a guesswork hela for example जेमती हमको कुहा जाए that mostly जने juvenile delinquent हेबो जदी तारो family रे किछि issue होइथिबो mostly we say that broken families lead to juvenile delinquency जदी जड़े पिलाटा drug करूची alcoholism करूची हेई पारे that mostly ता घरे किछि प्रॉब्लम थाए नो मे बी मदर फादर नो झगड़ा होची अलगा रहउछंती डाइवोर्स एक्सेट्रा सो एटा होची गोटे गेस वर्क हैला आमे जदी फील्ड रे जिबा तापरे ही आमे जानि पारिबा दैट एटा सत्य न नाही तो सेटा होची हाइपोथेसिस को कुहा जाए इट इज अ काइंड ऑफ अ गेस वर्क अ हंच अ इंट्यूशन ओके याको प्रूफ करिवार तो टाइम लागे हैला याको प्रूफ करिवा पई यू विल हैव टू गो टू द फील्ड एंड डू द रिसर्च हैला बट OPSC रे देखो कौन हेची से क्वेश्चन ता खाली हाइपोथेसिस ऊपर पचारिनी ओके इफ यू लुक इनटू दिस ब्रॉडर क्वेश्चन यू विल सी दैट it has merged two topics one is hypothesis and another is research design है so hypothesis question तो UPSC रे पचारछि but research design UPSC syllabus रे directly mentioned नहीं है but आमो syllabus रे directly mentioned अछि okay one more thing which I would like to tell you that आमो syllabus रे तीनटा research design mention कराई छि है experimental explanatory आउ होछि हमरो you know this experimental होछि explanatory होछि आउ होछि this explanatory exploratory and experimental ए तीनटा हमर सिलेबस रे क्लियरली मेंशन हेछि बट ए दुइटा होछि एक्स्ट्रा जोटा सिलेबस रे मेंशन नाही हैला तो जदी आमे ए दुइटा एक्स्ट्रा लिखि देबा निहाती भलो मार्क्स आसीबो दिस इज ऑलवेज अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ अ केक ओके नाउ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट बाय mentioning you know the definition of hypothesis जोटा ब्लैक एंड चैंपियन देथिला आहुरी भी डेफिनेशन अछि गोटे लर्नबर्ग अछंती सी दैछंती हैला पीवी यंग दैछंती ठीक है गुडेन हार्ट दैछंती जहां भी भलो लागिले गोटे डेफिनेशन गोटे थिंकर ना मन रखि देबा हैला तापरे ताकू निजे वर्ड रे एक्सप्लेन करबा हैला दैट हाइपोथेसिस जेंति मु कहूतिली इट्स मोस्टली अ यू नो अ गेस वर्क अ इमेजिनेटिव आइडिया हैला जहां को प्रूफ करबा रिमेनिंग रहउची तापरे गोटे एग्जांपल जेंति मु देली जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन ब्रोकन फैमिलीज हैला आमी एमटी भी देई परिबा दैट मोस्टली पीपल बिलीव दैट यू नो वुमेन आर नॉट गुड लीडर्स हैला तो हाइपोथेसिस हैला पर जणा पला ना एमटी नाही हैला इट विल बी फॉल्स वुमेन आर डूइंग वेरी गुड एज लीडर्स हैला तो सम काइंड ऑफ फॉल्स नोशंस कैन बी प्रूव्ड राइट विथ रिस्पेक्ट टू बाय एनालाइजिंग द हाइपोथेसिस वेरी क्लियरली हैला तो क्वेश्चन दे खाली पचारछि जे व्हाट इज हाइपोथेसिस बट वी वांट एक्स्ट्रा मार्क्स राइट तो आमे गोटे ट्री डायग्राम रे कोन करिबा ट्री डायग्राम करिकि आमे यूसेज ऑफ हाइपोथेसिस लिखि देबा द पॉलिसी फॉर्मुलेशन रे काम आसे हैला फर्दर रिसर्च रे काम आसे हैला आमे लिखि देबा दैट यू नो इफ यू लुक इनटू हाइपोथेसिस यू नो हमकु हाइपोथेसिस गोटे डायरेक्शन दिए इट इज लाइक अ नॉर्दर्न पोल स्टार हैला जो कोई रिसर्चर को गाइड करी था जो दुई तीनटा यूसेज लिखि देले कोन हैला कि यू विल सिक्योर एंटायर मार्क्स ऑफ दिस पार्ट हैला नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जेमति मु कहउथिली रिसर्च डिजाइन हैला सो हमर सिलेबस रो दुई तीनटा मेंशन हेछि बट व्हाई नॉट गेट्स एन एक्स्ट्रा मार्क्स अछि रिसर्च डिजाइन रो भी गोटे डेफिनेशन पीवीएन दैछंती ओके तो सेटा लिखि परिबा दैट रिसर्च डिजाइन इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ डायरेक्टिंग अ piece of research है
तो गोटे पीस ऑफ रिसर्च को गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन डायरेक्ट करबा किंबा कहबा को गोटे ब्लूप्रिंट हैला कहार गोटे डिजाइन करबा माने कोन होची तार गोटे ब्लूप्रिंट आनिबा हैला सेटा होची रिसर्च डिजाइन तापरे एई जो सब रिसर्च डिजाइन रो एक्सप्लेनेशन आउ तांकर होची हमको देबा पई पड़िबो एग्जांपल दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि जेंति हमें देखिबा एक्सप्लेनेटरी हैला तो नाम रो जणा पडुची जे सी एक्सप्लेन करिवो या फिर एक्सप्लेनेटरी को हमें कहू छु डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन आल्सो हैला तो एटा कोन करिवो गोटे प्लेस को गोटे पर्सन को कम्युनिटी को सब को डिस्क्राइब करिवो हैला तो सेटा होची एक्सप्लेनेटरी ओके एक्सप्लेनेटरी जदी तुम देखिबो तो यार आमे एग्जांपल देखि परिबा जेमति की सेंसस होची हैला आ तापरे एक्सप्लेनेटरी फर्दर निजे भी डिवाइड होची ठीक है सेटा तीनटा रे डिवाइड होची गोटे होची पैनल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन और गोटे होची क्रॉस सेक्शनल हैला पैनल होची पैनलटा फिक्स थिबा हम रिसर्च करिबा ओके तापरे लॉन्गिट्यूडिनल रिपीटेड टाइम पीरियड रे 5 वर्ष जाय गोटे विलेज रे आसी के रिसर्च करिबा यू विल गेट द रिजल्ट क्रॉस सेक्शनल इज ओनली वन टाइम रिसर्च हैला तो यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ ओपिनियन पोल हियर हैला से गुडा होची एग्जांपल एक्सप्लोरेटरी देखिबा को गले हैला नाम रो जणा पड़ुची एक्सप्लोर फॉर एग्जांपल मो काली गोटे ट्राइबल विलेज रे जिबी यू नो रिसर्च करबा पई हैला तो मु जानि नी नो तो गला आगरू मते जणा तो पड़िबा को पड़िबो ना दैट वेदर दे विल रियली रिस्पोंड टू माय रिसर्च डिजाइन और नॉट और से माने जदी मु गली जदी मते से माने सेटू पपाई देले तो कोन हबो हैला तो what will happen is exploratory is basically before doing the real research तमे जाई की फील्ड रे एक्सप्लोर करो that what is the possibility कौन कौन प्रॉब्लम आसी पारे हैला that is exploratory हैला you can give the example of if you want to do a research among tribals of Dongriya Kond हैला ओडिसा remember don't forget you are writing OPSC हैला तो सबु you know example रे कोटी गोटे ओडिसा लिखि देले भलो हैला तापरे होची डायग्नोस्टिक नाम रो डायग्नोसिस करबा किछि सोशल प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन प्रोवाइड करबा या रिसर्च रो काम फॉर एग्जांपल जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी हैला डोमेस्टिक वायलेंस एगुडा एक्सपेरिमेंटल इट इज मोर साइंटिफिक इन नेचर हैला आ एक्सपेरिमेंटल देखिबा को गले कोन हेबो फॉर एग्जांपल जेमति होची मिड डे मील स्कीम हैला गोटे स्कूल में नेबी स्कूल 1 गोटे स्कूल 2 स्कूल 1 रे मु मिड डे मील देली और स्कूल 2 रे देली दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल हैला तापरे मु देखिबी स्कूल 1 रे जोठारे मिड डे मील स्कीम देथिली कोन हेछि और जोटा देइनी कोन हेछि हैला दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल गोटे रे कंट्रोल थिबो ठीक है और गोटे एक्सपेरिमेंट थिबो comparative is when you compare हैला when you compare between different methods comparison रे tomorrow if you see tomorrow case study as jibo हैला case study is one method of comparative analysis है ना तो content analysis is also there okay historical way official statistics ये सब होची comparative okay तो see I'm not going into a lot of detail because it गुड़ा को पढ़िबा को गले videos will become very very lengthy मु बस चाहूची that you should know that केमती answer लिखिबा को पड़िबो okay and जदी will give good examples experiment जेमती मु आपण मन को देली mid day meal scheme रो definitely you will get more marks okay और conclude करी देबो holistically try to write both that hypothesis or research design both they act as a guiding force okay they act as a northern pole star researcher को guide करे that research should be in a good direction okay जेमती लिखिले you will get good marks okay आउरी देखिबा okay next question we will see is what is observation हैला and four advantages see देखिबो कोन दिया हेची अधिका लेखिले किछि ये नै अधिका लेखिले टिके माने हेई पारे एग्जाम रे ईगो हर्ट हे जाई पारे हैला फॉर एग्जांपल आई नो 8 advantages कोन करिवि मु 8 ता को 4 रे क्लब कर देबी हैला सो दैट मोर भी सैटिस्फैक्शन हे गला हाउ मु सबु जा पढिछि लिखि देली और तापरे एग्जामिनर भी सैटिस्फाइड कि हाउ चारटा लिखिछि हैला तो ऑब्जर्वेशन रे भी बहुत गुडा एग्जांपल तमे लिखि पारिबो थिंकर्स मु कहिबी हैला फर्स्ट यू कैन स्टार्ट डेफिनेशन तो आपण माने भाबी कोन सब बडे पीवी यंग ठीक है देखो पीवी यंग मते इजी लागे ठीक अछि तो मु सेटा रखिछि माने आउ एते गुडा अछति विलियम यू नो गुड डे हार्ट एक्सेट्रा जहां जार इच्छा यूएल बारबी इज आल्सो देयर सी ब्लैक एंड चैंपियन इज देयर जहां मने रहला गोटे डेफिनेशन मने रहबा दरकार ओके तो
ऑब्जर्वेशन विषय रे हमको पीवीएम कहउछंती जे ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमैटिक व्यूइंग ओके along with consideration of the seen phenomenon गोटे phenomenon को भलो से देखिबा सेटा होची observation and it's a very important tool and one of the simplest and the most natural method through which one can do your research okay now चार्टा लेखा इछि म ऑलरेडी कहलिए कि हमें पॉइंट्स गुडा को क्लब कर देला गुडाय पॉइंट्स अछि हला जेमती आई विल क्लब 2 points one is ecological validity and Hawthorne effect hela ecological validity माने होची that for example मु जने जिंस को ऑब्जर्व करूची ताहेले मु ताकू तार नेचुरल सराउंडिंग रे ऑब्जर्व करूची हला ताहेले तार इकोलॉजिकल वैलिडिटी मेंटेन हो जदी मु जाय कि ताकू पचारी करबी मु कहबी मु रिसर्चर अछि तो हे पारे कि से निजरो एट्रिब्यूट चेंज कर देबे हला जदी हमें गोटे जिंस को तार नेचुरल एनवायरनमेंट रे ऑब्जर्व करछु तो सेटा होची आमे तारो इकोलॉजिकल वैलिडिटी को प्रूव करछु हैला तापर होची Hawthorne effect हैला Hawthorne effect माने होची दैट रिसर्चर रो जो प्रेजेंस ता थ्योरी को इफेक्ट करि परिबे नहीं बिकॉज़ ऑब्जर्वेशन रे जदी हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करिमु डेफिनेटली हबो हैला बट क्वेश्चन रे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन पचारती तो लिखि परिबो दैट Hawthorne effect रिड्यूस हो जाए जे निजे जदी रिसर्चर न थिबो तो सी स्टडी को इन्फ्लुएंस करि परिबनी आउ जो आमे जाको ऑब्जर्व करूछु दैट दे कैन प्रेजेंट देयर नेचुरल बिहेवियर हैला तापरे आमे कंपैरिजन दे परिबा दैट ऑब्जर्वेशन रे जो रेस्पोंडेंट गुडा थाए तांको विलिंगनेस रो किछि मैटर नै फॉर एग्जांपल मोरते गोटे रिसर्च करिवार अछि हैला जेंटी ऑब्जर्वेशन रो गोटे भलो जिंस होछि हैला फॉर एग्जांपल तमको गोटे इन्फेंट रो स्टडी करिवार अछि होछुटी गोटे क्रिमिनल रो स्टडी करिवार अछि गोटे होछि साइकोलॉजिकल पेशेंट रो स्टडी मेंटल हेल्थ पेशेंट रो हैला तो तमे सेठी जाय कि निजे तो रही परिबनी हैला तो तमे कोन करबो बाहरु ऑब्जर्व करबो हैला तो सेही मामला रे ऑब्जर्वेशन बहुत भलो इंटरव्यू एगुडा आ क्वेश्चन आयर ए सब मेथड गुडा फेल मारि जाय एगुडा रे हैला दैट जदी तमे इन्फेंट रो स्टडी करिवार अछि एगुडा रे हैला एंड तापरे सामने वाला जदी न चाहूची होला जदी से चाहुनी कि से रेस्पोंड करिवो देन आल्सो यू कैन ऑब्जर्व बिकॉज़ से जानि परिबनी तमे ताकू रिसर्च अनुसार ऑब्जर्व करछो बट फॉर एग्जांपल इफ यू गोइंग टू इंटरव्यू समवन हैला फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू इंटरव्यू समवन हु हैज बीन अ मते जाना पड़छि गोटे डोमेस्टिक वायलेंस रो केस आस्थेला मु तांको पाखरे जीवी हे पारे से माने डरी कि किछि कहिबेनी हैला तांकर माने टिके एनोनिमस रहबा पई चाहिबे तो सेटा ऑब्जर्वेशन रे रही तो एमती गुडाए आमे एडवांटेजेस लिखि परिबा एंड यू कैन गिव लॉट ऑफ स्टडीज ठीक है यू कैन गिव द स्टडीज ऑफ एमएन श्रीनिवास ओके यू कैन गिव एंड्रे बेटलेस श्रीपुरम ओके यू कैन गिव SC Dubey, Shamir Pate, okay, a lot of examples you can give the examples of Goffman's mental asylum ऐसे study करथिले हैला तो जेमती WF White रो होची गोटे से कॉर्नविलियस स्ट्रीट रो करथिले तो ए सब एग्जांपल्स देई पारियो केमती ऑब्जर्वेशन ता भलो ऑल बारबी ना दुई तीनटा एडवांटेजेस कहिथिले दैट ऑब्जर्वेशन होची टिके फ्लेक्सिबल मेथड हैला तापरे से कहिथिले इनएक्सपेंसिव पैसा खर्च हबनी हैला तापरे इन डेप्थ एनालिसिस पॉसिबल हैला तो एगुडा लिखिले एक दिस आंसर विल बिकम कंप्लीट हैला तापरे कंक्लूड करि पाइबा सेम पीवीएन अगेन ओके सो पीवीएन कहिथिले देखो ऑब्जर्वेशन ठीक अछि कर किछि नाही हैला बट ऑब्जर्वेशन सहित हमको टिके सप्लीमेंटेशन करबा को पड़िबो he said that the full answer is not possible हैला फुल आंसर तेबे ही पॉसिबल हो पारिबो जबे आमे ऑब्जर्वेशन को आहुरी मेथड सहित सप्लीमेंट करिबा सो दैट आवर रिसर्च बिकम्स मोर होलिस्टिक एमती कंक्लूड करला पर एमती आंसर लिखिला पते मत लागुनी कोठी की मैथ्स रहिबो हैला ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके टेलकट पार्सी सो वी विल डिस्कस इन डिटेल द रेलेवेंस ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स इन सोशल चेंज हैला जदि मु कहूची फर्स्टली कोन हबो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन पिला माने कोन करिबो डायरेक्टली पैटर्न वेरिएबल बिजरे लेखे के आसजिबो बट यू सी इट इज आस्किंग कि पैटर्न वेरिएबल रो सोशल चेंज रे कोन रेलेवेंस रही छी हैला फर्स्टली मेक श्योर यू राइट द थिंकर्स नेम कि पैटर्न वेरिएबल कहार स्टडी हैला टेलकट पार्सन रो स्टडी हैला सेटा मेंशन करबा दरकार टेलकट पार्सन बिसरे हमर सर कहउथिले जे
टेलकट पार्सन जदि गोटे वर्ड लिखिले सेटा गोटे पैराग्राफ लिखिले सेटा गोटे चैप्टर लिखिले सेटा गोटे बुक हैला तो दैट इज द लेगेसी ऑफ टेलकट पार्सन एंड तांकर स्टडी बुझिबा इज नॉट वेरी इजी especially his studies of social system and social action हैला but definitely बुझी हेबो but पिलाने टिके ताको डिफिकल्ट देखंती but easy very interesting but तांकर सबुठी इजी मते लागि पैटर्न वेरिएबल किछि नै हैला देखिबा केमती पैटर्न वेरिएबल ता सोशल चेंज सहित लिंक करछथि तो इंट्रोडक्शन तो जदी देखिबा फर्स्ट आमे लिखिबा टेलकट पार्सन सी कोन गोटे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैला तो तांकर बुक ना जदी मने पडिबो तो लिखि देबो structure of social action हैला structure of social action से मेंशन करिसंती about pattern variables तापर डिफाइन करि परिबो pattern variables एंती pattern variables होछि व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ अ डिलेमा हैला जदी गोटे एक्टर गोटे सिचुएशन रे जो डिलेमा फेस करि थाए सेटा होछि pattern variable जदी दुईटा जिंस रे गोटे जिंस को चूज करि परिबा हैला आउ सी कहिसंती तांकर pattern variable होछि तांकर social system और social action सहित लिंक्ड सो तापर हमें मूव करबा केमती पैटर्न वेरिएबल सोशल चेंज सहित रिलेट जदी आपण टिके पढी थिबे यू विल कम टू नो दैट तांकर पैटर्न वेरिएबल देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन दैट देयर इज अ मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी हैला सो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वी सी ऑल दिस फेनोमेनन ए साइड रे जा लिखा हिची एंड ए सब जो लिखा होची ए होची मॉडर्न सोसाइटी हैला तो ट्रेडिशनल सोसाइटी रे हमकु देखिबा को मिले ऑसवर्स ठीक है दैट इज शॉर्ट फॉर्म अछि निमोनिक आपण निजर गोटे बाहर करि पाइबा मो निजर बाहर करछि तो मो कहि देउछि हमको सर कॉलेज रे कहितले हैला तो ऑसवर्स होछि गोटे एडपेक हैला इफेक्टिविटी इफेक्टिव न्यूट्रलिटी हैला ए सब तो हम पढिछु हैला नाउ कोन लेखिबार अछि जे आमे एई सब को एक्सप्लेन करिला पर गोटे एग्जांपल देबो जोटा देखिबो केमती देयर इज अ मूव देयर इज अ सोशल चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्निटी ओके गोटे दुटा एग्जांपल मु दे दोछि जेंती आमे एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट हैला एस्क्रिप्टिव आमे जानिछु कास्ट बेस्ड जेंडर बेस्ड हैला एथनिसिटी बेस्ड जो हमर आइडेंटिटी होछि से होते एस्क्रिप्टिव बाय आवर बर्थ हैला तो सेटा थिला मोस्टली ट्रेडिशनल सोसाइटी रे हैला बट आमे एबे मॉडर्न रे कोन चेंज आछि मॉडर्न रे होछि क्लास बेस्ड हैला तो स्टेटस बेस्ड हैला पावर बेस्ड सो एटा लिखिबा हैला that not only caste based but today's one's position is determined on the basis of status power class के कहिथिले एटा वेबर मने पड़छि हैला तो एमती लिखि परिबा कोन चेंज होछि जेमती आमे लिखि परिबा फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल इफेक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी इफेक्टिव जो थी भी पाइबा माने होछि इमोशन हैला सोशियोलॉजी रे इफेक्टिव है जहां भी जितने भी तमे स्टडी देखिबा इफेक्टिव माने होछि इमोशन तो इफेक्टिविटी माने होछि कि ट्रेडिशनल सोसाइटी रे द बॉन्ड्स वेर मोर इमोशनल इन नेचर हैला एबे होछि कोन मोर कॉन्ट्रैक्चुअल मोर फॉर्मल तेबे थिला मोर इनफॉर्मल हैला तो इफेक्टिवली रे दे परिबा एग्जांपल ओके जेंती आगरु द रिलेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स वेर मोर इमोशनल बेस्ड एबे कोन कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉपर्टी पई का मैरिज आगरु मोर इमोशनल बॉन्ड थिला हैला एबे इमोशनल रहि छै कि नहीं देयर इज राइज इन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हैला देयर इज राइज इन यू नो दिस various crimes with respect to marriage hela marital rape eguda hela marriage has become more of a show off hela conspicuous consumption he jaichi to empty guda example cite kariki jodi lekhiba sabu then you can justify kemti change heichi hela now conclude kari pariba that you know tankor jo idea hochi pattern variable ro सेटा तांकर ब्रॉडर जो कांसेप्ट होची सोशल एक्शन और सोशल स्ट्रक्चर ता सहित रिलेटेड एंड जदी पैटर्न वेरिएबल रे डिलेमा आसे तो सोशल सिस्टम तारो आंसर को प्रोवाइड करिवो बट इन टुडे सोसाइटी यू नो व्हाट इज देयर आमे केबे भी पैटर्न वेरिएबल्स डिफाइन करि पारिबा नाही बिकॉज़ फैमिली रे सब यू नो दिस सब पैटर्न्स गुडा मिसी की थाए इफेक्टिविटी भी थाए हला जेमती मा टिके हमको इमोशनली सपोर्ट करती हला बापा टिके इफेक्टिव न्यूट्रल हला टिके माने कहबा को टिके स्ट्रिक्ट हला तो आमे मेंटेन करि पारिबु नै because there is always a mixing up of pattern variables ना तो एमटी लिखि की कंक्लूड करी है बुझिलो तो एमटी गोटे आंसर को लिखिले कोन होची होलिस्टिक वे रे रिप्रेजेंटेशन हे पारिबो ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जो हमें डिस्कस करबा तापरे आ गोटे वीडियो आसीबो ता ठीक हमें आउरी जो क्वेश्चंस गुडा लेफ्ट आउट होची सेटा डिस्कस करबा हला
So एटा question होउची, is the role of family as a mode of social control still persist? Discuss the changing structure of family and marriage in modern time. मने रखिबो पेपर 1 टा लेखुछु आमे तो टिके वेस्टर्न थिंकर अधिका लेखिबो, बट सी नो हार्ड एंड फास्ट रूल देन माने इंडियन जर्मन लेखिबो नै, जदी मने न पढुछि लेखिबो, बट गुडाय थिंकर्स अछंती वेस्टर्न थिंकर्स भी से गुडा साइट करिबा हैला. 2017 यूपीएससी एटा पचारछि द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैला. सो मु आपन को गोटे देखौछि इंट्रोडक्शन हैला. तो 2018 रे हो हे पारेटा प्रॉपर्ली विजिबल नाही बिकॉज़ मु प्रॉपर फोटो नहीं पान नथली हैला, बिकॉज़ ए क्वेश्चन टा चेंज विषय रे पचारछि हैला, दैट केमती फैमिली और मैरिज रो स्ट्रक्चर टा मॉडर्न टाइम में चेंज हेछि हैला. तो राइट, तो एमती गोटे इंट्रोडक्शन जदी लेखि परिबा दैट लेखा हेछि द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन हैला. एगुडा जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ फैमिली होछि, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ फैमिली कोन गोटे फैमिली रे कॉमन रेसिडेंस गोटे जगह रे रहिबा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन थिबो हैला, सोशलाइजेशन करथिबो, ए सब चेंज हे जाइछि. जेंति एमती इंट्रोडक्शन लिखले कोन हेबो टिके कॉम्प्रिहेंसिवली आमे आंसर करि परिबा. अलगा भी इंट्रोडक्शन लिखि हेबो किछि ये नाही, बट गोटे इंट्रोडक्शन इज योर बिगिनिंग ऑफ द आंसर एंड इट गिव्स एन एग्जामिनर अ गुड व्यू हैला. तो हमें लिखि परिबा दैट बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ए सब जो ओरिजिनल फैमिली और मैरिज रो फंक्शन थिला सेटा एबे टिके टिके लूज हे चली छि हैला. सो एम्प्टी इंट्रोडक्शन लिखि देबो. नाउ आफ्टर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन बॉडी दुईटा पार्ट रे हबो. फर्स्ट पार्ट तो हमें देखिबा केम्प्टी फैमिली एबे भी सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज करछि हैला. तो जदी हमें देखिबा निजे भाबिले भी लिखि परिबो हैला, बट सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन रे टिके लिखिबा हैला दैट फैमिली एबे भी कंट्रोल करूछि हैना, मे बी जनकर मेट सिलेक्शन हैला, ठीक है, कहा सहित जने बाहागर करिवे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जेमती गोटे थिंकर अछंती जॉर्ज मर्डॉक हैला. जॉर्ज मर्डॉक सब बडे कहंती फैमिली गोटे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन. एबे तो हमें देखु जो जॉइंट फैमिली टिके ब्रेकडाउन होछि हैला, न्यूक्लियर फैमिली हैला, ता परे भी फैमिली स्टिल एक्सरसाइजेस अ ह्यूज कंट्रोल हैला. चिल्ड्रन ऊपर एक्सरसाइज करे हैला, तांकर कैरियर ऑप्शन रे कोन पढिबे कोन नाही हैला. तापरे फैमिली समवेयर कंट्रोल्स द लाइफ ऑफ द मेंबर्स, जेमती ऑनर किलिंग सब जानि छ हैला. तापरे प्रॉपर्टी भी देखे हैला. जॉइंट फैमिली जदी देखिबा तो बिजनेस गुडा को कंट्रोल करे, ठीक अछि. तापरे आमे देखि परिबा दैट वुमन मानक ऊपर कोन इंपैक्ट थाए फैमिली रो, द एजुकेशन ऑफ वुमन, एवरीथिंग ऑफ वुमन इज कंट्रोल्ड बाय अ फैमिली इन इंडिया. ओके, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द ऑथोरिटी ऑफ द कर्ता सोशियोलॉजिकली आमे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को कहू, ठीक अछि. तो सेगुडा एबे भी अछि, एबे भी फैमिली रे बिग बिग इंपोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर. एमती आमे लेखि की साइड करि परिबा द फर्स्ट सेशन. ओके, जेमती आमर टेलकट पर्सन होचंती से कहिथिले जे फैमिली रो दुईटा रोल सब बेडे थिबो. गोटे रोल होची सोशलाइजेशन हैला, आउ गोटे रोल होची पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो एटा भी हमें एटी एज अ थिंकर लेखि परिबा दैट एबे भी फैमिली को सोशलाइजेशन करछि, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करछि हैला. नाउ क्वेश्चन जो आउ गोटे पार्ट पचारिछि कोन होची फैमिली रो चेंजिंग स्ट्रक्चर, ठीक अछि. टिके देखि कि लिखिबा बिकॉज़ इफ यू सी there are two more questions you have to write about family and marriage. Okay, टिके देखि कि लिखिबा मु in general lot of points discuss करिबी हैला. So changing structure of family and marriage in India हैला. Some general ideas जदी देखिबा को गले तो मु कहिली that authority of कर्ता decline हे जाइछि हैला. एबे senior most male member सब डिसीजन नेउ नाहंती हैला, तांको स्त्री हैला, even ladies of the house, children ए समस्त डिसीजन नेउ छंती हैला. ए सब को आमे सोशियोलॉजिकली कुहा जाए फिलियल डिसीजन मेकिंग हैला. माने एबे डिसीजन मेकिंग रे वुमन और चिल्ड्रन भी पार्टिसिपेट करछंती हैला. जेमती गोटे थिंकर होछि जॉर्ज मर्डॉक, मु कहउतिली ऑलरेडी, से कहउतिले दैट गोटे फैमिली डिफाइन हुए तांकर कॉमन रेसिडेंस रु, एंड गोटे फैमिली रे आमे देखु दैट मैरिज अलाउज सेक्सुअली अप्रूव्ड यूनियन ऑफ टू पीपल, बट एमटी आउ नाही हैला. जदी गोटे फैमिली रो मेंबर गुडा बाहरे रहउछंती हैला, से हेले भी से फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करे हैला. नो लॉन्गर फैमिलीज ओनली आइडिया इज टू हैव अ कॉमन रेसिडेंस.
they may not have a common resident but functionally ସେମାନେ joint ହେଇ ପାରନ୍ତି ଯେମିତି IP ଦେଶାଇ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତ देखो अधिका टिके पढ़ले जानी पारिबे हैला बिकॉज़ सब डिस्कस करले इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मु जस्ट ओवरऑल आईडिया देउची केमती क्वेश्चन को आंसर करिवार थिला। जनरली जो हमें सोसाइटी रे देखुछु इफ यू कैन जस्ट सिंपली राइट दैट ओके गे लेस्बियन सिंगल पेरेंट लोन फैमिलीज ओके कोहैबिटेशन मतलब एम्प्टी शेल मैरिजेस होची जो थारे रियल रिलेशनशिप नहीं जस्ट फॉर द शो ऑफ कन्वीनियंस मते किछि दरकार। फॉर एग्जांपल यूएस रे सिटीजनशिप पाइबा पाई का लोग बाहागर करछंती हैला। आ गोटे थिंकर होचंती नॉर्मल बेन कहउछंती जे आजिकली मैरिज रियल प्रॉब्लम फेस करछंती चिल्ड्रन हैला। चिल्ड्रन हैव बिकम अ स्केपगोट। तो रिसेंटली जदी करंट अफेयर्स में पढ़थिबो गोटे एआई स्पेशलिस्ट थिला सुचेता सेठ सी निज चाइल्ड को मार देथिला हैला बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन हर एंड द हस्बैंड। तो याको हमें फीलिसाइड को बहुत न्यूज रे थिला। आ गोटे न्यूज रे थिला डिंक कपल डिंक होची डबल इनकम नो किड्स हैला। तो चाली छे सब गुडा हैला। तो देखो एमती किछि नाही दैट यू नो जस्ट फ्रॉम द बुक यू विल राइट ऑल द थिंकर्स जनरल आईडिया भी लिखिला टिक एग्जाम को भलो लागे हैला। थिंकर्स भी लिखिबा व्हाई नॉट यू नो पार्सन्स कर आईडिया लिखिबा आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली रो यंग एंड विलमट कहिथिला सिमेट्रिकल फैमिली माने होची हस्बैंड एंड वाइफ मिसी करी गोटे सब फंक्शन परफॉर्म करिवे हाउसहोल्ड जहा फंक्शन सब मिसी की करिवे। गिडन कहिथिले एंथोनी गिडन सीरियल मोनोगमी से कहउथिले कि आजिकली केते को मैरिज होची केते को डाइवोर्स होची तो किछि कहि परिबानी मैरिज को विषय ठीक है। यूगेन लिटविक he talked about modified extended families एमती सब देखिले टिके वेस्टर्न थिंकर्स बिकॉज़ पेपर वन अछि हला देन सी नो हार्ड एंड फास्ट रूल बट टिके पेपर वन अछि तो टिके वेस्टर्न थिंकर्स लिखिले टिके भलो थाता हैला। जमती आजिकली देखिबे ग्रैंड पेरेंट्स मानको को डका होची हैला चाइल्ड को देखिबा पई का न्यू लोकल फैमिलीज गुडा रे ठीक है। अदर टाइप ऑफ फैमिली जैसे कि बिन पोल फैमिलीज आर देयर ओके देन रिकंस्टिट्यूटेड फैमिलीज आर देयर हैला। ए सब अछि टिके देखि देले जणा पड़िबा। तो एमती लेखिले कोन हबो टिके भलो से मार्क्स आसीबे। So I hope this discussion was successful. We were trying to give you an analysis the केमती sociology the question पचारा होची okay and I myself have been teaching and preparing since a lot of years. So after discussion with sir we have decided to come up with this video. If you like it please let us know and if you want something else with respect to sociology then also भी कही परिबे अपन माने हैला आमे आहुरी डिस्कशंस वीडियो नहीं कि आसीबु एंड विल कंप्लीट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 टू गिव यू एन आइडिया ओके। सो सी वन थिंग मु कहबा को चाहूची दैट स्टार्ट योर ऑप्शनल ना प्लीज वेट करनी टाइम हेबनी ऑप्शनल रो नोट्स बहुत इंपोर्टेंट नोट्स हैला परे तार रिवीजन हैला परे तार आंसर राइटिंग और तापरे तार वेरी शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम आगु प्रिपेयर करबा दरकार। तमे जानिथिबो ए वर्ष एग्जाम आगु 1 डे रो गैप थिला जस्ट ऑप्शनल रहला। तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट हैला एबे टू ऑप्शनल करि चलो इट डेफिनेटली रैंक आसीबो हैला ओके। सो आई टेक अ लीव फ्रॉम नाउ थैंक यू and we'll see you soon.